فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ نظریاتی طور پر اتحاد کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح سمندر کے 2 کنارے ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح مجلس اور بی جے پی کی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اب کانگریس ان پر یہ الزام عائد کرتی ہے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے موجودہ صدر ہیں، ان کا تعلق RSS سے ہے۔ پریس کلب بشیر باغ میں تلنگانہ اسٹیٹ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ریونت ریڈی موہن بھاگوت کی ایما پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS پر اگر بی جے پی کا دباؤ ہوتا تو کس طرح مسلم اقلیتوں کی ترقی کے لیے خطیر بجٹ استعمال کیا گیا۔ 650 کروڑ اقلیتوں کی تعلیم پر خرچ کیے گئے بہبودی اسکیمات کے استفادہ کنندگان بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ اقلیتی اقامتی اسکولز کا قیام، انہوں نے کہا کہ KCR نے آبادی کے لحاظ سے کئی گنا اقلیتوں کے لیے خرچ کیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے آج تلنگانہ میں 2 عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے، جبکہ پارٹی لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا راجستھان میں 5 جلسوں سے خطاب کریں گے۔ کانگریس لیڈروں کے مطابق کھڑگے آج تلنگانہ کے عالمپور اور نلگنڈا اسمبلی حلقوں میں موجود رہیں گے۔ وہ پہلے دوپہر 1:30 بجے عالمپور کے لیزا ٹاؤن علاقے میں اور پھر 4:30 بجے نلگنڈا کے مریگوڑا گراؤنڈ میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ تلنگانہ اسمبلی کی 119 نشستوں کے لیے 30 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔ دریاسنا راہل گاندھی راجستھان کے دھول پور ضلع کے راجا کھیڑا میں دوپہر 12 بجے خطاب کریں گے، جبکہ دوسری ریلی دوپہر 1:30 بجے بھرت پور میں ہوگی۔ آخری جلسہ دوپہر 3 بجے گنگا پور میں ہوگا۔ ان کی بہن اور پارٹی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا چورو میں 12:30 بجے اور شاہ پورہ میں 2:30 بجے 2 عوامی جلسوں سے خطاب کریں گی۔ راجستھان میں 200 سیٹوں والی اسمبلی کے لیے ہفتے کو ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ تلنگانہ کے بیلمپلی کے کانگریس امیدوار OHCA کے سابق صدر جی ونود کے بشمول کرکٹرز شیو لال ارشد ایوب کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ حیدرآباد کے اوپل میں اسٹیڈیم کی تعمیر میں مبینہ رشوت خوری کے الزام پر ACB کی جانب سے چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ ACB کی چارج شیٹ کی بنیاد پر ED کی جانب سے تلاشی لی گئی۔ ED نے قبل ازیں چنور کے کانگریسی امیدوار وویک کے مکان کے ساتھ ساتھ دفاتر کی بھی تلاشی لی گئی تھی۔ دوسری طرف کانگریس نے الزام لگایا کہ انتخابات کے موقع پر مرکزی ایجنسیوں کی جانب سے حکمران جماعت BRS اور BJP کے امیدواروں کے مکانات کی تلاشی نہیں لی جا رہی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق ریاست میں اب تک 51% ووٹر انفارمیشن سلپس تقسیم کی جا چکی ہیں۔ جملہ 3,26,02,799 ووٹرز میں سے 65,32,040 افراد کو یہ سلپس تقسیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی 23 تاریخ تک ان سلپس کی تقسیم کا کام مکمل کرنے کا نشانہ ہے۔ رائے دہندے ان سلپس کے ذریعے اپنا پولنگ سینٹر اور دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کی تعداد کی بنیاد پر 16 اضلاع کو اضافی 14,500 بیلٹ یونٹ الاٹ کیے گئے ہیں۔ وکاس راج نے کہا کہ ریاست میں انتخابات کے لیے جملہ 59,799 بیلٹ یونٹس کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ تمام اضلاع میں گنتی کے مراکز کی فہرست کو حتمی شکل دے دی گئی ہیں، وہاں سیکیورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات سرگرمی کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ کے خلاف سنتوش نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ DCP روہت راجو نے بتایا ہے کہ دفعہ 353 ڈیوٹی میں رکاوٹ اور IPC کی دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ کل رات اکبر الدین اویسی پرانے شہر کے للیتا باغ ڈویژن میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر نے قائد مجلس کو قبل از وقت جلسہ ختم کر دینے کو کہا تھا، جس پر اکبر الدین اویسی نے انسپکٹر سے کہا تھا کہ ابھی 5 منٹ کا وقت باقی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی معاملے میں کیس درج کیا گیا ہے۔
सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में रोड शो के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बोराबंडा से रोड शो का आगाज हुआ जो यूसुफगुड़ा तक जारी रहा। रेवंत रेड्डी और मोहम्मद अजहरुद्दीन का अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया और सड़क की दोनों जानिब सैकड़ों अफराद मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने इलाके की तरक्की के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम के मसाइल के हल के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क भर में क्रिकेट स्टार की हैसियत से शोहरत रखने वाले अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी हैदराबाद में परवरिश हुई है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इलाके में तरक्की के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तेलंगाना रियासत में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होंगे, जिसके पेश नज़र रियासत हुक्मरान पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और तीनों ही पार्टियां इंतखाबात में कामयाबी का दावा कर रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के इंतखाबी नताइज रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन होंगे। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जनगांव में बीजेपी के जलसे से खिताब करते हुए राय दहिंदों से ख्वाहिश की है कि जाफरानी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की कोशिशों के नतीजे में रजाकारों से हैदराबाद रियासत को आज़ादी मिली। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी के खौफ से वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव यौम आज़ादी हैदराबाद की तकारीब सरकारी तौर पर नहीं मना रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने पर उस दिन को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने केरला और तमिलनाडु के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की पेशनगोई की है। पेशनगोई में अगले 3 दिनों तक इन रियासतों में भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने एक्स पर लिखा है कि केरला और तमिलनाडु ऑरेंज अलर्ट पर हैं, क्योंकि 21 से 23 नवंबर तक अलग थलग भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश मुतवक्के है। एक और ट्वीट में IMDA ने जिक्र किया तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 21 और 22 नवंबर को अलग थलग भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल शुमाली साहिली इलाकों और शुमाली अंदरूनी तमिलनाडु के साथ साथ जनूबी तमिलनाडु और कराईकल में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से रामनाथपुरम ज़िले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। मंगल को 8 दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। अंग्रेजी रोजनामा दी हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ पोर्टल पर शाया किए गए मुताबिक थरूरू ज़िले में सबसे ज़्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश हुई और जबकि चेन्नई में कम बारिश हुई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तमिलनाडु के मुतादिद इलाकों में एतदाल से लेकर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके नतीजे में पानी भर गया है और स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ब्रिक्स सरबराह इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो इसराइल को असलहा बरामद करना बंद कर दें। वहीं जनूबी अफ्रीका समेत चीन और रूस ने भी गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई की मुखालिफत की है। जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराह इजलास जारी हैं। इस इजलास में गजा में जारी इसराइली कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत की गई। ब्रिक्स वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, मिस्र, रूस, ब्राज़ील, भारत, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन, इथियोपिया और ईरान शरीक हैं। अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हैं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशंस, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद।
इसराइली फौजियों ने शुमाल मशरक़ी गजा में जबालिया इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इसराइली फोर्सेस ने पनाह गजीन कैंप के गेट और करीबी अस्पताल पर बमबारी की। इस दौरान फलस्तीनी जंगजुओं ने मज़ाहमत भी की। इसके साथ ही इसराइली फौज ने शुमाली गजा में अपनी कार्रवाई बढ़ा दी है, जहां के रिहायशियों को हफ्ते से बिजली, पानी या इंसानी इमदाद तक रसाई हासिल नहीं है। इसराइल और हमास की जंग 7वें हफ्ते में दाखिल हो गई है। जंग का अगला हिस्सा जबालिया कैंप में तब्दील हो गया है, जो गजा शहर के करीब कॉन्क्रीट के इमारतों का घना जंगल है। यहाँ 1948 की जंग के महाजरीन और उनकी औलादें यहाँ मुकीम हैं। इसराइल कई हफ्तों से इस इलाके पर बमबारी कर रहा है। फौज ने कहा है कि हमास के जंगजू गजा शहर के बेशतर इलाकों से निकाले जाने के बाद वहाँ और दीगर मशरक़ी अजला में दोबारा मुनज़्ज़म हो गए हैं। जबालिया के मुज़ाफ़ात में वाक़े इंडोनेशिया के एक अस्पताल के बाहर भी जंग में शिद्दत आ गई, जहाँ पीर को होने वाले एक हमले में 12 अफराद हलाक हो गए थे। इसी दौरान शुमाली गजा में दबाव के बाद ये वाज़ेह नहीं है कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का अंदाज़ा है कि यहाँ 1,60,000 अफराद कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। यहाँ ज़्यादा वक्त के लिए ज़रूरी सामान की फराहमी नहीं बची है। इसी दौरान WHO ने कहा है कि वो गजा के 3 अस्पतालों से लोगों को निकालने का मंसूबा बना रहा है। इसराइल और गजा के दरमियान जारी जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही हमास ने अभी तक तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया है। लेकिन अब इसराइली काबीना ने गजा से दर्जनों मग़वियों की रिहाई के लिए हमास के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से एक इजलास मंगल की शाम 8 बजे इसराइली मुकामी वक्त के मुताबिक मुनक़्क़द हुआ। ये इत्तला न्यूज़ एजेंसी AFP ने दी है। क़ाबिल-ए-ज़ीर टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि 4 से 5 दिनों में हमास तकरीबन 50 बच्चों, उनकी माँ और दीगर यरगमाल ख़वातीन को रिहा कर देगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।